Hello everyone, welcome back to today's class for the second lecture of the chapter electricity. So in today's lecture we will be learning about electric potential and potential difference. Okay, so let us start with electric potential. Consider a conductor which is negatively charged. Okay, and it is connected with a metal wire to another conductor. Okay, so this is a metal wire and this conductor is uncharged. So the negatively charged conductor, let us say A, and the uncharged conductor, let us say B. So the negatively charged conductor A has more concentration of electrons as compared to the uncharged conductor B. Negatively charged conductor has higher concentration of electrons, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है as compared to the uncharged which has lower concentration of electrons. इसके पास इलेक्ट्रॉन का concentration ज्यादा है. So the electron flows from the conductor in which they are in higher concentration to the conductor in which they are in lower concentration. तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड कंडक्टर से अनचार्ज्ड कंडक्टर की तरफ क्या करना चालू करेंगे? फ्लो. सो देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज्ड कंडक्टर to an uncharged conductor. Okay, now we connect a negatively charged conductor to a positively charged conductor B. So again the negatively charged conductor will have higher concentration of electrons and a positively charged conductor will have lower concentration of electrons. So the electrons will move from higher concentration to lower concentration. तो electrons जो है वो flow होते हैं from negatively charged conductor to a positively charged conductor. So there will be a flow of electrons from higher concentration to lower concentration. Okay. Now say we connect a positively charged conductor to an uncharged conductor. Okay, so obviously a positively charged conductor will have lower concentration of electrons and an uncharged conductors will have higher concentration of electrons. Okay, a positively charged conductor will have lower concentration of electron and uncharged conductor will have higher concentration of electrons. So now the electrons will flow from higher concentration to lower concentration. So now the electron flows from the uncharged to the positively charged. So there will be a flow of electron from uncharged conductor to positively charged conductor. So the conclusion is that electrons flow from a region of higher concentration to a region of lower concentration. जहां पर जिस कंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां से उस कंडक्टर की तरफ फ्लो होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन कम है. तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो होते हैं? जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्वांटिटी में है वहां से जहां पर कम है वहां की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं. ठीक है. Now the flow between two conductors which are joined by a metal wire, okay, this can be maintained for a long time. How can we maintain this for a long time? इसको ज़्यादा टाइम तक के लिए मेंटेन कैसे किया जा सकता है? So this can be maintained for a longer time अगर हम दोनों के बीच में जो concentration of electron है इसे क्या करें? मेंटेन, डिफरेंस जो है उसे मेंटेन करके रखें. ठीक है. अगर ये हायर कंसेंट्रेशन पे है और ये लोअर कंसेंट्रेशन पे है तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन के कंसेंट्रेशन का डिफरेंस है, जो इलेक्ट्रॉन्स कम ज्यादा है, इसके पास ज्यादा है इसके पास कम है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है अगर इस डिफरेंस को हम ज्यादा टाइम तक मेंटेन कर पाए तो ज्यादा टाइम तक हम क्या कर पाएंगे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को करवा पाएंगे, मेंटेन करवा पाएंगे.
and this is the thing which happens in the electric cell. ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है, there are two terminals, positive terminal and negative terminal. Okay, there are two electrodes rather say. So there are two electrodes in an electric cell. One is the anode, the positively charged, and the other is the cathode. Okay, so electric cell में क्या होता है, this difference in concentration of the electrons is maintained. ठीक है, एनोड और कैथोड दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन है उसे क्या करते हैं, दोनों के बीच में मेंटेन करके रखते हैं. इससे क्या होगा कि अगर एक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो चालू रहेगा और इलेक्ट्रिक सेल जो है वो वर्क करेगा, उसमें से करंट फ्लो होगा. क्योंकि हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, चार्जेस फ्लो होते हैं तो करंट फ्लो होता है. ठीक है, तो एनोड और कैथोड के बीच में ये जो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं. ओके, एनोड इज द पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल एंड कैथोड इज द नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल. सो एक के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड दूसरे के पास डेफिशिट होते हैं. सो द कैथोड हैज एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स एंड द एनोड इज डेफिशिट इन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो अब डिफरेंस इन कंसंट्रेशन हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है. सो द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन एन इलेक्ट्रिक सेल. नाउ एज वी नो, let us see some examples. First is the gravity. What happens in gravitational force, gravitational pull और gravity? क्या होता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, say a stone या a ball, जब भी हम उसको ऊपर से नीचे फेंकते हैं, so what happens? The ball moves due to the force of gravity. तो बॉल क्यों मूव कर रही है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से. ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से. ठीक है, लेट अस सी वन मोर एग्जांपल कि we take a hot body and a cold body. This is a hot body and this is a cold body. So this is at a higher temperature and this is at a lower temperature. ठीक है, जब हम इन दोनों को पास में प्लेस करते हैं, कांटेक्ट में, तो क्या होता है कि दोनों, the heat flows from a hot body to a cold body. ठीक है, हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव होने लगती है एंड दोनों जो है वो किस में आ जाते हैं, एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे आ जाते हैं. ठीक है, या फॉर एग्जांपल एक बकेट है, उसमें हॉट वाटर है, जब हम उसमें कोल्ड वाटर डाल देते हैं तो द हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी. जो हीट एनर्जी वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है. मतलब जो हीट है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करती है. जो बॉडी हायर टेम्परेचर है उससे to the body which is at the lower temperature. ठीक है, let us see one more example. Say we take two vessels. We take two vessels. Say यहाँ पर इस लेवल तक water and in this vessel the water is till this level. ठीक है, so what happens जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, so the water flows from here to here, from this vessel, from vessel A to vessel B. Why does this happen? Because of the difference in the levels. ओके, ये वाटर जो है वो क्या होता है कि क्योंकि दोनों के लेवल्स में डिफरेंस है व्हिच इज नोन एज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से वाटर जो है वो क्या करता है कि जिसमें हायर लेवल पे है वहां से जिसमें लोअर लेवल पे है वहां पर क्या करता है, फ्लो करता है. तो वाटर जो है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. Okay, so in all the examples, ठीक है, इस
एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में, इन एग्जाम्पल्स में हमने क्या देखा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर है, सो वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, जहाँ पे हायर लेवल पे है, फ्रॉम देयर टू द लोअर लेवल। ओके, टेम्परेचर में, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी में, जहां पर टेम्परेचर हाई है वहां से हीट एनर्जी फ्लो हो रही है टू द बॉडी विच इज लोअर इन टेम्परेचर। तो ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहां पर लेवल ज्यादा है या जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पर वो चीज जो हीट है दैट इज हायर इन क्वांटिटी, जो हीट एनर्जी है वो ज्यादा है, सो वो फ्लो हो रही है टू समथिंग वेयर हीट एनर्जी इज लोअर इन क्वांटिटी। सेकेंडली, इधर जो हायर लेवल है वहां से वाटर फ्लो कर रहा है टू लोअर लेवल, व्हाई? बिकॉज ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसके कारण वाटर जो है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो कर रहा है। तो सिमिलरली जब करंट फ्लो होता है तो करंट के फ्लो होने का, जब चार्जेस फ्लो होते हैं तो चार्जेस के फ्लो होने का कोई कारण होना चाहिए, कोई रीजन होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ रीजन फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस। जैसे इन सब में एक रीजन है कि जब हीट एनर्जी फ्लो हो रही है या जो वाटर फ्लो हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो सिमिलरली जब चार्जेस फ्लो होते हैं सो देयर मस्ट बी अ रीजन, देयर मस्ट बी समथिंग कि जिसकी वजह से चार्जेस एक बॉडी से दूसरी बॉडी, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में फ्लो हो। तो ये कौन है जो डिटरमाइन करता है द फ्लो ऑफ चार्जेस? So this flow of charges from higher concentration to lower concentration is determined by what we call as potential. ठीक है? So similarly when two charged conductors are joined, ठीक है, जब हम दो charged conductors को join करते हैं, say one negatively charged and say the other one positively charged. So similarly when we join the two charged conductors, जब हम दो charged conductors को join करते हैं, so there will be a flow of electron from the higher concentration to the lower concentration, and this is determined by the electric potential or by the potential. So what is electric potential? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज समथिंग विच डिटरमाइंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वो चीज है जो डिटरमाइन करती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां से कहां फ्लो हो रहे हैं, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो हो रहे हैं। तो ये कौन डिटरमाइन करता है? दिस इज डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, नाउ द कंडक्टर हैविंग excess of electron, which is the negatively charged conductor, this is said to be at low potential, at lower potential, and the conductor which is positively charged and which has a deficit of electrons, this is said to be at higher potential. Okay, so now the electrons are moving from higher concentration to lower concentration. Okay, ये reverse है, understand this. जहां पर इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, higher concentration, it is said to be at lower potential, and जहां पर इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन कम है, lower concentration, it is said to be at higher potential. So remember this कि reverse है case. So the electrons are flowing from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Electrons flow हो रहे हैं higher concentration से lower concentration की तरफ. मतलब the electrons are flowing from lower potential to higher potential. ठीक है? And as we know that the direction of current is reverse to that the direction of flow of electrons. मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं तो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज रिवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो करते हैं, दैट मीन्स द करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. This is what happens in an electric cell.
one of the terminal is maintained at higher potential and other terminal is maintained at lower potential. Means one of the terminal has excess of electrons and the other terminal has deficit of electrons. So one of the terminal is said to be at higher potential, the other one is said to be at lower potential, and so the electrons move from lower potential to higher potential, and we say that the current is flowing from higher potential to lower potential. Okay. So this is all about electric potential. So let us summarize. What is electric potential? When the electrons flow from a region of higher concentration to a region of lower concentration. This is what is determined by electric potential. Okay. Now moving on to potential difference. What do you mean by potential difference? These are all very theoretical terms. Okay, so you need to remember these. Potential difference. Say two charges, one charge say Q1 and the other charge say Q2. Two charges are at infinite separation from each other. Infinite separation. Now what do you mean by this infinite separation? A charge has an area around itself. ठीक है, एक चार्ज के अराउंड एक एरिया होता है where it exerts its force of attraction or repulsion. ठीक है, एक चार्ज होता है, उसके अराउंड एक एरिया है जहां पर वो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट कर सकता है. फॉर एग्जांपल समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि जैसे एक वाईफाई होता है. ठीक है, सो वाईफाई में क्या होता है कि राउटर एक जगह होता है पर जो उसका सिग्नल है वो सब जगह आता है. बहुत मतलब एक रूम में आ रहा है या दो रूम्स में आ रहा है, तो वो क्या है, उसका एरिया है जितना वो कवर कर रहा है जिसपे उसका फोर्स लगता है. सो सिमिलरली एक चार्ज है Q1. Q1 के अराउंड एक एरिया होता है. हर चार्ज अपने अराउंड एक एरिया बनाता है, एरिया क्रिएट करता है जहां पर वो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट कर सकता है. वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मैग्नेट आल्सो. एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट के अराउंड एक एरिया होता है जहां पर अगर हम कोई आयरन का ऑब्जेक्ट या आयरन की नेल लेके जाएंगे तो मैग्नेट क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा. या अगर हम मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल है, अगर हम दूसरा मैग्नेट लेके जाए जिसका साउथ पोल अगर उसके पास लेके जाएंगे तो वो उसको रिपेल करेगा. तो मैग्नेट के अराउंड में एक एरिया होता है जहां पर वो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा सकता है. सो मैग्नेट के केस में दैट इज नोन एज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज के केस में इट इज नोन एज एन इलेक्ट्रिक फील्ड. सो व्हाट डू यू मीन बाय इनफाइनाइट सेपरेशन? इनफाइनाइट सेपरेशन का ये मतलब है कि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती. ठीक है, अगर ये चार्ज Q2 से दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज आल्सो अ पॉजिटिव चार्ज, अगर ये चार्ज Q2 यहां आ जाए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो Q1 क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा. सिंस दे बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, सो इन दोनों के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन. सो अगर ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, सो दिस मींस कि इन दोनों के बीच में सेपरेशन जो है दैट इज नॉट इनफाइनाइट. ठीक है, इनफाइनाइट सेपरेशन का मतलब नहीं कि बहुत दूर दूर हजारों किलोमीटर दूर, इट डज नॉट मीन दैट. ठीक है, इनफाइनाइट सेपरेशन मीन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा दूर है ताकि दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है. सो व्हेन टू चार्जेस आर एट इनफाइनाइट सेपरेशन, दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 एंड दे बोथ आर एट इनफाइनाइट सेपरेशन फ्रॉम ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे पे कोई भी फोर्स नहीं लगाते. सो कंक्लूजन ये कि जब दो चार्जेस जिनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स बहुत दूर दूर है, तो वो दोनों उन दोनों के ऊपर लगने वाला फोर्स जो होता है दैट इज जीरो. मींस देयर विल बी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉर देयर विल बी एनी फोर्स ऑफ रिपल्शन. ओके, अब क्या कर रहे हैं कि अगर हम सपोज दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज आल्सो अ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है,
अब हम क्या करें कि इस पॉजिटिव चार्ज को इसके पास लेकर आए। सो व्हाट विल हैपन, ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। सिंस वी नो लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज के पास में लेकर आएंगे, when we bring them closer या when we bring them together, जब हम उनको पास में लाएंगे, जब हम मूवमेंट करेंगे, so what will happen, they both will repel। तो हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा टू ब्रिंग द बोथ चार्जेस टुगेदर। ठीक है, इन दोनों चार्जेस को पास में लाने के लिए, इन दोनों चार्जेस को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, टुगेदर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा इन दोनों के फोर्सेस के अगेंस्ट, बिकॉज दीज बोथ फोर्सेस, दीज बोथ चार्जेस आर रिपेलिंग ईच अदर। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे। ये दोनों दूर जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, ये जबरदस्ती पास ला रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, वी आर ब्रिंगिंग देम टुगेदर। तो हमें अगर इन चार्जेस को पास में लाना है, साथ में करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके फोर्सेस के अगेंस्ट बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द थिंग व्हिच हैपेंस जब हम बोलते हैं कि एक्सेस ऑफ चार्ज और डेफिशिट ऑफ चार्ज। अगर हम कहीं पे एक्सेस ऑफ चार्ज करना चाहते हैं, चार्जेस एक्सेस में लाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, अगेंस्ट द चार्जेस, ताकि हम क्या करें, उन्हें पास में रख सके, क्योंकि वो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर हम बोल रहे डेफिशिट, तो डेफिशिट में हमें क्या करना पड़ेगा कि उस उनकी जो फोर्सेस है उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, ताकि चार्जेस को हम क्या करें, दूर ले जा सके। सो अगर हमें कहीं पे चार्ज का एक्सेस करना है या कहीं पे चार्ज का डेफिशिट करना है, सो इन बोथ द केसेस वी नीड टू डू अ वर्क, हमें वर्क करना पड़ेगा उनके फोर्सेस के अगेंस्ट, ताकि हम कहीं पे भी एक्सेस या डेफिशिट ऑफ चार्जेस क्रिएट कर सके। ओके, सो पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक है, जो किसी भी पॉइंट पे जब हम पोटेंशियल बोलते हैं, मान लो इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल मेजर करना है। सो पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज मेजर्ड, कैसे मेजर करते हैं कि हम कितना वर्क कर रहे हैं, इट इज द वर्क डन, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज। एक चार्ज को अगर हम इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा कि हमने कितना वर्क किया एक चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए। ठीक है, ऑब्वियसली हमने पढ़ा है कि वर्क कब होता है, जब हम किसी पे भी फोर्स लगाएं और उसका क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो। जब हम फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट होता है, देन वर्क इज सेड टू बी डन। तो चार्ज पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, उनके चार्जेस के अगेंस्ट हम फोर्स लगा रहे हैं एंड उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर हम चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, उनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है। तो जब भी किसी चीज पे फोर्स लगे और उसका डिस्प्लेसमेंट हो, देन वी से दैट वर्क इज डन। फिजिक्स की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, वर्क इज सेड टू बी डन। ठीक है, तो वर्क कब होता है, जब फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट हो। So electric potential या potential at a point, it is determined, it is measured by the work done in bringing a charge q from infinity to that point. ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल हम ऐसे मेजर करते हैं, ये पोटेंशियल की डेफिनेशन है। चलो, now moving on to the definition of potential difference. ठीक है, दो कंडक्टर्स के बीच में, ठीक है, दो कंडक्टर्स है, दो कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखें, जैसे सपोज बैटरी है, सेल है, उसमें दो टर्मिनल्स है, तो उन दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे। और अगर हम दो कंडक्टर्स ले रहे हैं, उन्हें ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं मेटल वायर से, तो इन दो कंडक्टर्स के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स, दो कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर। ठीक है, तो जब हम यूनिट चार्ज को एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में मूव करते हैं, उसमें कितना वर्क डन हुआ, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस।
So potential difference is the work done to move a unit charge from one conductor to other. ठीक है, एक यूनिट चार्ज को एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में मूव करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा, दैट इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, सो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस में दो चीजें हैं, वर्क एंड वर्क किसके ऊपर हो रहा है, चार्ज. सो द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस will include work. Potential difference is equal to work upon charge. Potential difference is denoted by capital letter V. Work upon charge is Q. Okay. The SI unit for potential difference is volt, denoted by capital V. So 1 volt will be equal to 1 joule upon 1 coulomb. Means if 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge, unit charge, from one conductor to another. Okay, so this is the definition for 1 volt. Potential difference is measured with the help of a device known as voltmeter. Okay, and voltmeter is always connected in parallel with the circuit. ठीक है, जिसका भी पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना है उसके साथ हम वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाते हैं. ओके, सपोज एक हमने रेजिस्टर लगाया है बीच में, तो इसके अक्रॉस हम वोल्टमीटर लगा देंगे अगर हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है. रेजिस्टर क्या होता है ये हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे. रेजिस्टर एक टाइप ऑफ, इट्स अ टाइप ऑफ कंडक्टर. ओके, तो रेजिस्टर के अक्रॉस अगर हमें वोल्टेज मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ ऐसे पैरेलल में वोल्टमीटर लगा देंगे. ठीक है, सो दिस इज ऑल विथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस.